So what we have seen earlier is ledger, and there is another thing which is called as a trial balance. Now what we have started with is journal entries. Journal पे हमने क्या बनाया? Ledger accounts. अब ledger पे क्या बनता है आगे is trial balance. What is trial balance basically? Trial balance is nothing but list of balances, debit and credit combined and total. ये trial balance क्यों बनाते हैं? To check out whatever we recorded is correct or wrong. How we record the transactions? We record the transactions with double entry system of bookkeeping. Am I right? And what double entry system of bookkeeping says? That for every debit there is equal and corresponding credit. Double entry क्या बोलता है? हर debit के लिए वहां पे equal और corresponding credit है. And that is how double entry says that total of all debits is equal to total of all credits. यानी जो कुछ हमने जर्नल एंट्रीज किए उस पर हमने लेजर बनाया. अब लेजर में से क्या करेंगे? हम बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करेंगे. क्या बैलेंसेस रहेंगे? इन yesterday's lecture only we have seen that real accounts are always having debit balances. Personal accounts can have debit balance or credit balance. Debit balance of a personal account means debtor. Credit balance of a personal account means creditor. And nominal account again can have debit balance or credit balances. Expenses and losses should be debited. Income and gains should be credited. ये हमने कल देखा था. अभी जो भी बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लेजर अकाउंट से, लेजर अकाउंट्स अलग अलग रहेंगे. उसमें कुछ रियल रहेंगे, कुछ नॉमिनल रहेंगे, कुछ पर्सनल रहेंगे. लेकिन उसके बैलेंसेस क्या होते हैं? आइदर डेबिट और क्रेडिट. कौन से डेबिट रहेंगे? कौन से अकाउंट डेबिट बैलेंसेस बताते हैं? रियल अकाउंट, मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, कैश अकाउंट, ये सारे डेबिट बैलेंस बताएंगे आंखें बंद करके. एम आई करेक्ट? उसके साथ और क्या डेबिट बैलेंसेस बताएंगे? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इंटरनेट चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, wages account, salaries account, interest account, commission account, but all must be paid. और क्या डेबिट रहेगा? All personal accounts showing debit balances. There are only two personal accounts, my dear, which are going to show debit balances. एक होता है debtor, any customer to whom you have sold goods on credit basis, and drawings. Drawing is a personal account always having debit balance. तो याद रखिए, there are only two personal accounts usually having debit balances. One is debtors, another is drawing. एक है debtor और दूसरा है drawing. बाकी सारे रियल का डेबिट रहेगा, बाकी सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस का भी डेबिट रहेगा. ये ट्रायल बैलेंस का बेसिक बाइफिकेशन है बेटा. और क्रेडिट में क्या आएगा ट्रायल बैलेंस के? ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस, सेल्स और टर्नओवर ऑफ द बिजनेस, डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड. ये क्या हुआ? इनकम और गेन. एंड अनदर इज ऑल लायबिलिटीज एंड क्लेम्स ऑफ द बिजनेस. सारी लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स, बैंक लोन, कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे क्या रहेंगे? क्रेडिट बैलेंसेस. व्हाई? बिकॉज ऑल दीज आर लायबिलिटीज. और ऑल पर्सनल अकाउंट्स हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस, जैसे फिर से क्रेडिटर्स का ही पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर्स का ही क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो इनको हमें ट्रायल बैलेंस में ढालना है. ट्रायल बैलेंस मतलब डेबिट में क्या और क्रेडिट में क्या. अभी लगभग मैंने आपको चार्ट बता दिया. ट्रायल बैलेंस में डेबिट में क्या क्या आएगा बेटा? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, all assets, properties and possessions of the business, and number 3 all personal accounts showing debit balances. यानी ट्रायल बैलेंस में मैंने कितनी चीजें बोली स्टूडेंट्स? only 3 things. number 1 all assets, properties and possessions of the business, number 2 all expenses and losses of the business, and number 3 all personal accounts showing debit balances. तो ये debit balances रहेंगे. credit balances में क्या क्या आएगा? number 1 all incomes and gains of the business, and second all liabilities and claims of the business. तो ये दो चीजें आएगी, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट. उसके हिसाब से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है. उन्होंने क्या दिया है? ट्रायल बैलेंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट or list of all ledger accounts as on a specific date showing debit and credit balances of all ledger accounts. सारे जो ledger account है आपके, उसका ये लिस्ट हम बनाएंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, टोटल और कंबाइन, और उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. यूजुअली ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर. हाउएवर इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी पीरियड, at any time, any point of time, to check arithmetical accuracy of the recorded transaction. वैसे जो भी आप लेजर के बैलेंसेस निकालेंगे
कुछ डेबिट रहेंगे, कुछ क्रेडिट रहेंगे और कुछ भी नहीं रहेंगे, मतलब जीरो रहेंगे। जैसे कि मैंने रिया को बेचा और रिया ने मुझे पैसे पूरे दे दिए, तो ये अकाउंट कुछ बैलेंस बताएगा या जीरो बताएगा? जीरो बताएगा। क्यों? मैंने उसको 10 लाख का बेचा, उसने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए 1 महीने बाद, अकाउंट इज क्लोज्ड। सो दैट वे अराउंड जब मैं ये बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करूंगा तो इसमें कुछ डेबिट रहेंगे, कुछ क्रेडिट रहेंगे, कुछ असेट्स रहेंगे, कुछ एक्सपेंसेस लॉसेस रहेंगे, कुछ इनकम एंड गेन रहेंगे, कुछ लायबिलिटीज एंड क्लेम्स रहेंगे, कुछ डेटर्स रहेंगे, कुछ क्रेडिटर्स रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए या हमने कुछ इसमें मैनिपुलेशन करना चाहिए? क्या लगता है आपको? ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। क्यों? Because while recording journal entries, we follow double entry system of bookkeeping, which says that for every debit there is an equal and corresponding credit. क्योंकि डबल एंट्री में हमने क्या फॉलो किया कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, इसलिए यहां पे टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स होना चाहिए, वरना ये कुछ मैनिपुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो व्हाई ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड? वन रीजन टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, दैट इज टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। यानी जो कुछ आपने रिकॉर्ड किया है वो उसका टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट मैच करता है या नहीं करता है, इसको हम ट्रायल बैलेंस बुलाते हैं। दो तरह के ट्रायल बैलेंस उन्होंने बताया, एक ग्रॉस और दूसरा नेट। ग्रॉस हम बनाते नहीं, हम नेट बनाते हैं। नेट मतलब जो बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड है वही हम बनाते हैं, और वो एक्सट्रैक्टेड बैलेंसेस है। वैसे ग्रॉस के बारे में क्या दिया है? इन दिस टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट इज शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस and total of credit side of a particular account is shown in the credit column of trial balance. It is not in common use as it doesn't disclose the balance of each account. ये सब लेजर हमने काय को बनाया? बैलेंस एक्सट्रैक्ट करने को बनाया, या अलग से डेबिट लेंगे और अलग से क्रेडिट लेंगे? बेटा बैलेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे सीधा सीधा, whether डेबिट इज मोर देन क्रेडिट और क्रेडिट इज मोर देन डेबिट। डेबिट बैलेंस रहा तो हम डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस रहा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, और ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, एंड दैट इज नेट ट्रायल बैलेंस मेथड। इसलिए ग्रॉस नहीं बनाते, क्योंकि ग्रॉस क्या बोल रहा है? सारे डेबिट डेबिट में लिखो, सारे क्रेडिट क्रेडिट में लिखो, तो फिर काय को लेजर बनाना है? फिर ट्रायल बैलेंस की तरह ही लेजर बनाना है क्या? नो, लेजर अलग है और ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमें क्या चाहिए? नेट इफेक्ट चाहिए। अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर उसका बैलेंस डेबिट आता है तो डेबिट बैलेंस लिखेंगे, अकाउंट क्लोज करने के बाद उसका क्रेडिट बैलेंस आता है तो क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे, बात खत्म। एक ही अकाउंट आएगा और उसका एक ही बैलेंस आएगा, कैश अकाउंट का एक ही बैलेंस आएगा। ये बोल रहा है कैश के सारे डेबिट लिखो, कैश के सारे क्रेडिट लिखो। इज इट अ गुड मेथड फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? नो। नेट वाला बनाएंगे। नेट क्या दिया है? इन दिस टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस ओनली द बैलेंसेस ऑफ ईच लेजर अकाउंट आर शोन अगेंस्ट इट्स नेम। कैश के अगेंस्ट एक बैलेंस, बैंक के अगेंस्ट एक बैलेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस, कमीशन, सेल्स, कैपिटल, एनी अकाउंट should have how many balances? Only one, either debit or credit, depending on the rule which we just discussed before some time. If an account shows a credit balance, then its balance is recorded in the credit amount on the ट्रायल बैलेंस एंड वाइस वर्सा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखिए, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखिए, और आखिरी में देखिए टोटल दोनों मैच होता है या नहीं होता है। होता है तो ट्रायल बैलेंस इज परफेक्टली मैचिंग, योर सम इज करेक्ट। मैच नहीं हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। दिस ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड इन प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिस में यूज होता है। और ये देखिए, ये है ट्रायल बैलेंस, आप देख सकते हैं यहां पे सीरियल नंबर, हेड ऑफ द अकाउंट। हेड ऑफ द अकाउंट में क्या आएगा? certain assets, certain liabilities, expenses and losses, income and gains, and personal account showing debit balances and showing credit balances. डेबिट रहा तो उसका अमाउंट डेबिट में आएगा, क्रेडिट रहा तो उसका अमाउंट क्रेडिट में आएगा। अब फटाफट मैं कुछ हेड बोल रहा हूं, ऑल मस्ट बी रेडी। मैं जैसे ही हेड बोलूंगा आपने बोलना है उसका बैलेंस डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा। रेडी एवरीबॉडी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू रेडी? ऑनलाइन से ही शुरुआत करेंगे अपन। मैं अकाउंट बोलूंगा, आपको बैलेंस बोलना है उसका डेबिट है या क्रेडिट है। ऑन व्हाट बेसिस वी आर गोइंग टू टेल? ऑन द बेसिस ऑफ assets and expenses and losses and personal account showing debit balances। ये सारे डेबिट होते हैं, assets डेबिट होते हैं, expenses and losses डेबिट होते हैं, and all
पर्सनल अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेस वो भी डेबिट होता है। क्रेडिट क्या होता है बेटा? ऑल लायबिलिटीज एंड क्लेम्स ऑफ द बिजनेस। और क्रेडिट क्या होता है? ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। तो अभी मैं कुछ अकाउंट बोलूंगा, आपने मुझे उसका बैलेंस बोलना है कि उसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। चलो फटाफट चालू करते हैं। चलिए गणेश के साथ शुरुआत करते हैं। गणेश, कैश अकाउंट, रीजन कैश अकाउंट ही इज सेइंग डेबिट, आंसर इज राइट और रॉन्ग? राइट। व्हाई? बिकॉज इट इज एन असेट, बिकॉज इट इज एन असेट। कैश का सिर्फ डेबिट बैलेंस ही हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। ऐसा होगा क्या कि मेरी जेब में -2000 रुपए है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जेब में या तो 2000 रुपए है या तो मेरी जेब में कुछ नहीं है। एज सिंपल एज दैट। हाँ, बैंक अकाउंट में हो सकता है कि बैंक में या तो डेबिट बैलेंस है या तो क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन कैश में ऐसा नहीं हो सकता। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज करेक्ट गणेश। ईशा, सेकेंड अकाउंट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, शुड हैव व्हिच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अगेन डेबिट, रीजन इज इट इज एन असेट। आयुष, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट। it is credit. Why? Because it is a liability. 15% HDFC bank loan, Saurabh, credit again. Why? Because it is a liability. ये liability है face. Sales account, Pooja, क्रेडिट। sales account, Pooja, turnover or sales, क्रेडिट बैलेंस होता है सेल्स का, बिकॉज सेल्स इज अ इनकम एंड इनकम एंड गेन्स शुड हैव क्रेडिट बैलेंसेस। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूं सो दैट योर कंफ्यूजन विल बी एंटायरली रिवर्स्ड हियर। आपका कुछ भी कंफ्यूजन रहा तो गायब हो जाएगा। चलो अगर मैं इसका चार्ट बनाता हूं ट्रायल बैलेंस का, सो हाउ इट इज गोइंग टू बी मेड। अगर इसका चार्ट ही बनाना है मुझे, देखता हूं कहीं पे जगह है क्या अच्छी। यस, ये देखिए, दिस इज ट्रायल बैलेंस एंड कितने साइड बताऊं यहां पे मैं इसको? 2 साइड बताता हूं। एक आएगा डेबिट और दूसरा आएगा क्रेडिट। भावनाओं को समझ लो, वहां पे एरो खींचा नहीं जा रहा है ना, क्योंकि वहां पे पेज है, पेज ब्रेक है, तो वहां पे वो खींचा नहीं जा रहा है। एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अब इसमें मैं 3 चीजें लिखूंगा, उसमें एग्जाम्पल आपको डालने हैं। सो पहले डेबिट में क्या डालूं बेटा? सबसे पहले डेबिट में क्या डालूं? ऑल असेट्स ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल आपको डालने हैं। क्या क्या होगा? कैश अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट, बराबर है, मोटरसाइकिल, मोटर कार, ये सारे आपके क्या है? असेट्स है। टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, डजंट मैटर, सारे असेट है और असेट का डेबिट बैलेंस होता है। दूसरा एग्जांपल आपको ऐड करना है। सेकेंड इज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। वेरी गुड, all expenses and losses of the business. तीसरा, all personal accounts showing debit balances. All personal accounts showing debit balances. ये तीसरा है। बताइए स्टूडेंट्स, इसमें एग्जांपल आपको ऐड करने हैं। एक्सपेंसेस में क्या क्या ऐड करेंगे? सैलरीज, वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस, पोस्टेज, जो आप डाल सकते हैं, पेड इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, ऑल शुड बी पेड। ये सारे एक्सपेंसेस। लॉसेस में क्या डालेंगे? बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये डाल सकते हैं लॉसेस में। और ऑल पर्सनल अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंस, उसमें सिर्फ 2 चीजें आएगी, एक डेटर्स और दूसरा ड्राइंग्स। एक डेटर्स और दूसरा ड्राइंग। एन नंबर ऑफ डेटर्स में भी दे, 1000, lakhs, crores, बट ये सारे डेटर्स है।
जिनको आपने क्रेडिट में बेचा और पैसा आना बाकी है। कल भी हमने देखा डेटर्स ऑन व्हिच शो डेबिट बैलेंसेस एंड दैट इज हाउ इट इज एन असेट। अभी चलता हूं क्रेडिट में, एग्जांपल आपको ऐड करने बेटा, मैंने पहले ही बोला, तो चलो क्रेडिट में चलता हूं। पहला क्या लिखूं? ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस क्या क्या आएगा? सेल्स, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, क्योंकि ये सारे क्या है? गेन है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड, ऑल लायबिलिटीज, ऑल लायबिलिटीज एंड क्लेम्स ऑन द बिजनेस, ऑल लायबिलिटीज एंड क्लेम्स ऑन द बिजनेस, यानी जो भी लायबिलिटीज है, क्लेम्स है बिजनेस पे, वो भी यहां पे आ सकती है। और तीसरा, ऑल पर्सनल अकाउंट्स, वैसे शोइंग क्या? क्रेडिट बैलेंसेस। तो यहां पे एक चीज आपको बता दूं बेटा, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बताता है, मतलब वो सिंपली लायबिलिटी है। मतलब नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 सेम है यहां पे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट ही क्रेडिट बैलेंस बताता है और पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बताता है, मतलब वो क्या है? लायबिलिटी है। तो सेकंड एंड थर्ड देखा जाए तो सेम है एज फार एज क्रेडिट इज कंसर्न। इसमें आप कैपिटल लिख सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं, बैंक लोन लिख सकते हैं, है राइट? क्रेडिटर्स लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ये सारी लायबिलिटीज है। और ये सारे एक तरह के क्रेडिटर्स है जो आपको बैलेंस क्या बताएंगे? क्रेडिट बैलेंस ही बताएंगे। मतलब सेकंड और थर्ड लगभग सिमिलर है। पहला अलग है, सेल्स या टर्नओवर, इनकम एंड गेन्स, इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड, रेंट, डिस्काउंट, रिसीव्ड। तो ये सारे इनकम और गेन है। बताइए बेटा, कोई डाउट है ट्रायल बैलेंस में? चलो ये टेबल एज इट इज कॉपी करो और उसमें एग्जांपल्स आपको ऐड करने हैं। करेंगे? फटाफट एग्जांपल भी ऐड करो। ऑल असेट्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में मैंने बोला क्या ऐड करना है, ऑल पर्सनल अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेस में डेटर और ड्राइंग, दो ही चीज है, बराबर है। उधर ऑल इनकम एंड गेन में एग्जांपल दे दिए, और ऑल पर्सनल अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेस एंड ऑल लायबिलिटीज एंड क्लेम्स इज वन एंड द सेम थिंग। तो उतना ही कॉपी करो। इज दैट क्लियर? ट्रायल बैलेंस में कोई डाउट है? ट्रायल बैलेंस हमें मैच करवाना है या अपने आप होता है बेटा? अपने आप वो बैलेंस होता है। So this is what the short lecture on trial balance